السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ عبادت گاہوں کی کشادگی سے عوام نے لی راحت کی سانس۔ مکہ مسجد مصلیوں کے لیے کھول دی گئی۔ کووڈ قواعد کے ساتھ نمازوں کے اہتمام کا فیصلہ۔ قرض اور اراضی کی فروخت پر تلنگانہ حکومت کا انحصار۔ محمد علی شبیر، حقیقت پر مبنی بجٹ تیار کرنے کا مطالبہ، فلاحی اسکیمات متاثر نہ ہوں۔ حکومت سے نیکلس روڈ کو نرسمہا راؤ مارگ سے موسوم کرنے کے بعد اب نیکلس روڈ پر انجہانی نرسمہا راؤ کے مجسمے کی تنصیب کے کاموں کو کر دیا گیا تیز۔ آؤٹر رنگ روڈ ٹول ٹیکس میں HMDA کو 100 کروڑ کا نقصان۔ خانگی کمپنی سے معاہدے کی تجدید نہیں ہوئی، اضافی شرحوں کا حصول جاری۔ GHMC میئر گدوال وجے لکشمی نے اپنی سالگرہ کے موقع پر لوٹس پونڈ میں ہریتا ہرن کے تحت لگائے پودے، اسپتال پہنچ کر مریضوں میں کیے پھل تقسیم۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں KCR نے رکھا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کی عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد۔ تلنگانہ کے وزیر IT KT راما راؤ نے مرکزی حکومت سے کی اپیل، کہا جنگی خطوط پر حیدرآباد میں ٹیکے کی جانچ کا ایک مرکز کیا جائے قائم۔ لاک ڈاؤن کی مکمل برخاستگی پر عوام میں ملا جلا ردعمل، تاجرین میں خوشی۔ کورونا کی تیسری لہر کا اندیشہ برقرار، ہوٹل انڈسٹری اور تفریحی سرگرمیاں بحال، پرانے شہر میں معمول کے حالات۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست تلنگانہ کے ضلع ورنگل کا دورہ کیا اور ورنگل میں تعمیر کیے جا رہے ملٹی سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ دیگر عہدیداران، عملہ اور وزراء بھی موجود تھے۔ حکومت سے نیکلس روڈ کو نرسمہا راؤ مارگ سے موسوم کرنے کے بعد اب نیکلس روڈ پر انجہانی نرسمہا راؤ کے مجسمے کی تنصیب کے کاموں کو تیز کر دیا گیا۔ نیکلس روڈ چوراہے پر اندرا گاندھی کے مجسمے کے روبرو نرسمہا راؤ کے مجسمے کے لیے جگہ کی نشاندہی کر لی گئی۔ GHMC ذرائع کے مطابق PV نرسمہا راؤ کے مجسمے کی تنصیب کے کاموں کو تیز کر دیا گیا ہے اور ان کے یوم پیدائش 28 جون سے قبل
ان کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اگر ان کی تکمیل یوم پیدائش سے قبل ہوتی ہے تو 28 جون کو نیکلس روڈ چوراہے پر نرسمہا راؤ کے مجسمے کی نقاب کشائی کی جائے گی۔ نیکلس روڈ کے آغاز پر نرسمہا راؤ کے مجسمے کی تنصیب کے اقدامات سے مقامی منتخبہ عوامی نمائندوں اور کارپوریٹرز کو واقف کروایا جا چکا ہے اور کہا گیا ہے کہ کابینہ کے فیصلے کے مطابق نیکلس روڈ کو نرسمہا راؤ کے نام سے موسوم کرنے کے فوری بعد جی ایچ ایم سی سے پی وی نرسمہا راؤ مارگ کے بورڈ آویزہ کیے جا چکے ہیں اور اب تیزی کے ساتھ چوراہے پر انجہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے مجسمے کے روبرو نرسمہا راؤ کے مجسمے کی تنصیب کے اقدامات ہو رہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور جی ایچ ایم سی نے ماتحتین اور متعلقہ منتخبہ عوامی نمائندوں کو واقف کروا دیا ہے تاکہ منصوبے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو سکے۔ ایچ ایم ڈی اے کو گزشتہ 2 سالوں میں آؤٹر رنگ روڈ کے ٹول ٹیکس کے معاملے میں تقریباً 100 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ٹول ٹیکس وصول کرنے والی کمپنی نے 2018 سے معاہدے کی تجدید نہیں کی۔ ٹول ٹیکس وصول کرنے والے ادارے ایگل انفرا انڈیا لمیٹڈ گاڑیوں سے نظر ثانی شدہ ٹول ٹیکس حاصل کر رہا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق آؤٹر رنگ روڈ پر گاڑیوں کی تعداد میں 22% کا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن کمپنی کی جانب سے ایچ ایم ڈی اے کو 2018 کے معاہدے کے مطابق صرف 24 کروڑ روپے ادا کیے جا رہے۔ کانٹریکٹ کی مدت اگرچہ گزشتہ سال ختم ہو چکی ہے لیکن کسی سرکاری منظوری کے بغیر توسیع کر دی گئی۔ ایچ ایم ڈی اے نے ٹول ٹیکس کے سلسلے میں نئے ٹینڈرز طلب نہیں کیے۔ اسے ماہانہ 4 کروڑ روپے کا نقصان گزشتہ 2 سالوں سے ہو رہا۔ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا اور دیگر ایجنسیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایکسپریس ویز کی نگہداشت کریں۔ ہر سال ٹول چارجز پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہول سیل پرائس انڈیکس کی بنیاد پر اضافہ کیا جاتا ہے۔ حکومت نے کمپنی کو زائد چارجز وصول کرنے کی اجازت تو دی لیکن اس سے سرکاری ادارے ایچ ایم ڈی اے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ حکومت کے جیو 365 کے تحت گاڑیوں سے وصول کیے جانے والے یوزر چارجز میں سالانہ 3% کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر سال 1 اپریل کو نظر ثانی کی جاتی ہے اور یہ اضافہ 40% سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ مرتبہ کی گئی نظر ثانی کے تحت کار، جیپ اور دیگر گاڑیوں کے لیے فی کلومیٹر 1 روپے 86 پیسے سے بڑھا کر 1 روپے 92 پیسے کیا گیا۔ منی بس کے چارجز 3 روپے 2 پیسے سے بڑھا کر 3 روپے 11 پیسے کیے گئے۔ بس اور ٹرکس کے چارجز 5 روپے 33 پیسے سے بڑھا کر 5 روپے 51 پیسے فی کلومیٹر کیے گئے۔ ایچ ایم ڈی اے ٹول ٹیکس میں اپنی حصے داری کے لیے مساعی کر رہا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی میئر گدوال وجے لکشمی نے جی ایچ ایم سی آفس میں اپنی خدمات سنبھالنے کے بعد پہلی سالگرہ کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر نامور فلمی اداکار نندموری بالاکرشنا کے ساتھ باساؤ تارکم اسپتال میں کینسر سے متاثرہ افراد میں پھل تقسیم کیے۔ میئر نے پسماندہ اور کینسر سے متاثرہ ضرورت مند افراد کی مستقل خدمات اور ناقابل یقین مدد فراہم کرنے پر پورے باساوتارکم ٹیم کی تعریف کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے میئر نے اسپتال کی کامیاب طویل عرصے کے لیے تمام کریڈٹ بالاکرشنا نندموری کو پیش کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کووڈ-19 بحران کے دوران اسپتال نے بے شمار مریضوں کی مفت خدمت کی ہے اور وبائی امراض کے خلاف جنگ میں کمیونٹی کی خدمت کی ہے۔ یہ شہر میں انتظامیہ، معالجین اور معاون عملے کی ایک بہترین قسم ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ٹیارس حکومت سے عثمانیہ اسپتال کی نئی عمارت کی تعمیر کے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس سے ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے تمام 7 حلقوں اور دیگر لوگوں کو آسانی فراہم ہو سکے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مقننہ اسمبلی تلنگانہ کے تمام ممبران نے عثمانیہ جنرل اسپتال کا دورہ کیا اور او جی ایچ کے سپرنٹینڈنٹ سے ملاقات کی۔ اس دورے کے دوران بیرسٹر اسد الدین اویسی نے عثمانیہ جنرل اسپتال کی دیکھ بھال پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور انہوں نے تمام وہاں پر موجود چیلنجوں کو فوری طور پر حل کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ ہم بول رہے کہ وہ ہیریٹیج بلڈنگ کا بہانہ نہیں بنانا، وہ ہیریٹیج بلڈنگ سے ہمارا کو مطلب نہیں ہے۔ ہیریٹیج پروٹیکٹ کرنا یقیناً 4 مینار ہے، مکہ مسجد ہے، مچھلی کمان ہے، قلعہ گولکنڈہ ہے، سالار جنگ میوزیم ہے،
ये हेरिटेज को देखेंगे या आप लोगों के इंसानों की जानों को बचाएंगे? आप पेशेंट्स हैं यहाँ पर, एवरी ईयर 90,000 ऑपरेशन होते हैं गरीबों के यहाँ पे, किडनी ट्रांसप्लांट होता, लिवर ट्रांसप्लांट होता, हार्ट के बाईपास सर्जरी होती, तो ये पूरा ये क्या होगा बोला? और ये सुनिए ये हेरिटेज का बहाना बना के डेवलपमेंट नहीं कर रहे उस्मानिया का, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको हेरिटेज करना है, हमारे को मतलब नहीं है बिल्डिंग से, आप तोड़ना है तोड़ो बिल्डिंग को, हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाओ, वही आर्किटेक्चर को इनकॉर्पोरेट करो। एमआईएम पार्टी उस्मानिया हॉस्पिटल के नाम पे, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, और हमारा डिमांड है कि इमीडिएटली नई बिल्डिंग सैंक्शन करना। आपकी बात सही है, अनाउंस करें, नहीं हुआ फॉलो अप, अब फॉलो अप होगा, हम भी इसके ऊपर पीछे पड़ेंगे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ओके साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तब्दील शुदा सूरत हाल में मालियाती साल 2021-22 के नजरसानी शुदा बजट अवाम में पेश करे और उसे काबिल अमल और हकीकत पर मबनी बनाया जाए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वजीर फाइनेंस हरीश राव ने 2021-22 के लिए 18 मार्च को असम्बली में 2,31,000 करोड़ का बजट पेश किया था। बजट की पेशकशी के मौके पर कोरोना की सूरत हाल और सरकारी खजाने की आमदनी में कमी जैसी सूरत हाल को नजरअंदाज कर दिया गया। जारिया मालियाती साल का पहला तिमाही खत्म होने को है और रियासत का खजाना मुकम्मल खाली है। रियासती हुकूमत कर्ज के हुसूल और अराजियत की फरोख्त के जरिए मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन, सब्सिडी और दीगर अखराजात की तकमील की तैयारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 में हुकूमत को महज 1925 करोड़ की आमदनी हुई, जो हुकूमत के निशाने के तहत सिर्फ 4.24% है। लॉकडाउन के नतीजे में मई और जून के दौरान भी रियासत की आमदनी में भारी कमी वाक़ई हुई है। माहिरीन ने अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की पेशकयासी की है, जिसके नतीजे में रियासत की मईशत की बहाली फौरी तौर पर मुमकिन दिखाई नहीं देती। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को चाहिए कि वो माहिरीन माशियात और अहदेदारों के साथ मशावरत के जरिए फौरी तौर पर नजरसानी शुदा बजट तैयार करें। उन्होंने कहा कि रियासत की आमदनी को पेश नजर रखते हुए हक़ाइक़ पर मबनी बजट तैयार किया जाए, ताकि अवाम की भलाई से मुताल्लिक़ स्कीमात मुतासिर न हो सके। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 1006 नए केसेस दर्ज हुए। वहीं रियासत तेलंगाना में अब तक के कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,13,202 हो गई। गुज़िश्ता रोज 11 अफराद की मौत वाक़ई हो गई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,567 हो गई। आदिलाबाद में 0 कोरोना केसेस दर्ज हुए। भद्रादरी, कोतगुड़ा में 50, जीएचएमसी में 141, जगतियाल में 17, जनगांव में 12, जयशंकर भोपालपल्ली में 11, जोगुलांबा गदवाल में 10, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 62, खम्मम में 88, कुमरम भीम आसिफाबाद में 3, महबूब नगर में 21, महबूबाबाद में 28, मंचिरियाल में 26, मेदक में 9, मरचल मलकाजगिरी में 58, मुलुगु में 8, नागर कर्नूल में 13, नलगुंडा में 64, नारायणपेट में 5, निर्मल में 0, निजामाबाद में 9, पेदापल्ली में 27, राजना सिरसला में 21, रंगारेड्डी में 79, संगारेड्डी में 18, सिद्दीपेट में 34, सूर्यापेट में 68, विकाराबाद में 16, वनपर्ती में 29, वरंगल रूरल में 17, वरंगल अर्बन में 41 और यदाद्री भोंगिर में 17 कोरोना वायरस के नए केसेस दर्ज हुए हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882।
पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामा राव ने मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की कि हैदराबाद में वैक्सीन टेस्टिंग सेंटर जंगी खतूत पर कायम किया जाए। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद आलमी सतह पर वैक्सीन के मरकज के तौर पर उभर रहा, लिहाजा मरकज को चाहिए कि टेस्टिंग सेंटर के क़याम पर तवज्जो मबजूल करे। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद में टेस्टिंग सेंटर के क़याम से माहाना 8 से 10 करोड़ वैक्सीन की खुराक ज़ायद तौर पर तैयार हो पाएगी। उन्होंने कहा है कि सेंटर के क़याम के बाद आइंदा 6 महीने में 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक तैयार किए जाने का इम्कान है। उन्होंने मुल्क में वैक्सीन की जरूरत के पेश नजर हैदराबाद में टेस्टिंग सेंटर के क़याम की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा है कि सेंटर के क़याम के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। हुकूमत दरकार अराजी अलॉट करने के लिए तैयार है। कोरोना वबा के पेश नजर हैदराबाद में MMTS ट्रेन सर्विस के काम रोक दिए गए थे और तवक्को है कि आइंदा हफ्ते कामों का दोबारा आगाज होगा। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने वज़ीर रेलवेज पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद ये इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि MMTS सर्विस से गरीब और मुतवस्सित तबकात के अलावा खानगी मुलाजमीन को काफी सहूलत होगी। वज़ारत रेलवेज ने MMTS के कामों के दोबारा आगाज का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए अवाम को कोविड क़वाइद पर सख्ती से अमल आवारी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर रेलवे से ख्वाहिश की गई कि कोविड के साथ MMTS सर्विस को बहाल किया जाए। मरकजी वजीर ने इस सिलसिले में हमदर्दाना गौर का तयखुन दिया। वाज़ेह है कि कोरोना वबा के आगाज के बाद से MMTS की खिदमात को रद्द कर दिया है। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने आज 21 जून 2021 को यौम योगा डे के मौके पर राजभवन में रियासती महकमे आयुर्वेद के ज़रिए एहतमाम एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए योगा का एहतमाम किया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा है कि योगा एक रूहानी, जहनी और जिस्मानी मशक है जो उम्रों से जारी है और लोगों ने योगा से वाबस्ता मुतअद्दिद सेहत से मुतल्लिक़ फ़वाइद दरियाफ्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि योगा कैलोरी जलाने और पट्टों को मजबूत बनाने से ज़्यादा काम करता है। ये वर्जिश है जिसमें जिस्म और दिमाग दोनों शामिल हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि योगा का आलमी दिन मंगल को 21 जून को हिंद के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इक़दाम पर पूरी दुनिया में मनाया गया था, जिसने 27 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में अपने खिताब के दौरान कहा था कि सितंबर 2014 में योगा के फ़वाइद पर रोशनी डाली और पूरी दुनिया में यौम योगा मनाने की ताकीद की गई। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले IAS और IPS ओहदेदारों को काबीना इजलास से फिर एक बार मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से बेहतर पोस्टिंग का इंतजार करने वाले ओहदेदारों को उम्मीद थी कि चीफ मिनिस्टर काबीना के इजलास में तबादलों और पोस्टिंग को मंजूरी देंगे। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए ने इंकशाफ किया था कि KCR ने IAS और IPS ओहदेदारों के तबादलों की फाइल तलब कर ली है। चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस से मशावरत के बाद किसी भी वक्त अहकामात जारी किए जा सकते हैं। ओहदेदारों को उम्मीद थी कि काबीना के इजलास में तबादलों की फाइल को मंजूरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके नतीजे में सीनियर ओहदेदारों में मायूसी पाई जाती है। IAS ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर आखिरी मर्तबा तब्दीलियां फरवरी 2020 में अमल में आई थी, जब 50 ओहदेदारों के तबादले किए गए, जिनमें जिले कलेक्टर्स भी शामिल थे। इससे कबल अगस्त 2018 में बड़े पैमाने पर तरक्की और तबादले किए गए थे। तवील अरसे से इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई, जिसके नतीजे में कई अहम सरकारी महकमे जात में फुल टाइम ओहदेदार नहीं हैं और हर ओहदेदार को जायद जिम्मेदारियां दी गई हैं।
चीफ मिनिस्टर ने नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने के लिए 1 से ज़ायद मरतबा तबादलों का मंसूबा बनाया, लेकिन किसी न किसी वजह से मुलतवी किया जाता रहा। कई IPS ओहदेदार 2019 से एक ही ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे। उनमें से बाज ऐसे हैं जिन्हें तरक्की तो हासिल हो चुकी है, लेकिन पोस्टिंग नहीं दी गई। तरक्की के बावजूद पोस्टिंग न मिलने पर IPS ओहदेदारों में बेचैनी देखी जा रही। तेलंगाना हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की जानिब से तामीर किए जा रहे गैर कानूनी आबपाशी प्रोजेक्ट पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किदा काबीना इजलास में आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तामीर का जायजा लिया गया। हुकूमत ने गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से पहले ही शिकायत कर दी और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात दर्ज किए गए। काबीना में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और मरकज की हिदायत को नजरअंदाज करने पर आंध्र प्रदेश हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दरियाई कृष्णा के पानी की तकसीम के सिलसिले में कायम ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल ने 17 सालों में दरियाई कृष्णा के पानी में तेलंगाना की हिस्सेदारी का तयन नहीं किया, लिहाजा हुकूमत ने अलहदा ट्रिब्यूनल के क़याम का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत के तयक़ुन के बाद तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। हुकूमत को उम्मीद है कि मरकज आंध्र प्रदेश के गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स को रोकते हुए तेलंगाना के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। काबीना ने दरियाई कृष्णा के पानी में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स की तामीर का फैसला किया है, ताकि महबूब नगर, रंगारेड्डी, नलगुंडा, खम्मम और वरंगल में आबपाशी के लिए, जबकि हैदराबाद में पीने के पानी की इम्कानी किल्लत से निपटा जा सके। काबीना ने गदवाल वनपट्टी में जोगुलांबा बैरेज की तामीर का फैसला किया। इसके अलावा नलगुंडा, कलवाकुर्ती में कैनाल्स और ज़खायर आब की तामीर का फैसला किया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर। इबादत गाहों की कुशादगी से अवाम ने ली राहत की सांस। मक्का मस्जिद मुसल्लियों के लिए खोल दी गई। कोविड क़वाइद के साथ नमाजों के एहतमाम का फैसला। खर्च और अराजी की फरोख्त पर तेलंगाना हुकूमत का इन्हिसार। मोहम्मद अली शब्बीर, हकीकत पर मबनी बजट तैयार करने का मुतालबा। फलाही स्कीमात मुतासिर न हो। हुकूमत से नेकलेस रोड को नरसिम्हा राव मार्ग से मौसूम करने के बाद अब नेकलेस रोड पर अनजहानी नरसिम्हा राव के मुजस्समे की तनसीब के कामों को कर दिया गया तेज। आउटर रिंग रोड टूल टैक्स में HMDA को 100 करोड़ का नुकसान। खानगी कंपनी से मुआहदे की तजदीद नहीं हुई। इजाफी शरहों का हुसूल जारी। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने अपनी सालगिरह के मौके पर लोटस पॉन्ड में हरिताहरण के तहत लगाए पौधे। अस्पताल पहुंचकर मरीजों में किए फल तकसीम। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल में KCR ने रखा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इमारत की तामीर का संगे बुनियाद। तेलंगाना के वज़ीर IT KT रामा राव ने मरकजी हुकूमत से की अपील। कहा, जंगी खतूत पर हैदराबाद में टीके की जांच का एक मरकज किया जाए कायम। लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी पर अवाम में मिलाजुला रद्दअमल। ताजरीन में खुशी। कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा बरकरार। होटल इंडस्ट्री और तफरीही सरगर्मियां बहाल। पुराने शहर में मामूल के हालात।
विशनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज, माहिरीन असातिज़ा की निगरानी में वेल फर्निश्ड लैब, हर साल 92% से ज्यादा रिजल्ट, कोर्सेज ऑफर्ड इन जूनियर कॉलेज, BPC, MPC, CEC, MEC, courses offered in vocational college, CSC, MLT, MPHW, degree courses, BCom General, BCom Computer and BBA, Visionary Junior Vocational and Degree College, हर तालिब इल्म के लिए स्कॉलरशिप की सहूलत, कंसेशन फॉर यतीम, सिंगल पेरेंट और कोविड विक्टिम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बस एंड ऑटो स्टैंड के करीब, विशनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज, अब्दुल्ला बिल्डिंग, खिलबत, हैदराबाद. Contact 9390444104 and 7842022660. साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।